السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارا مہینہ آدھا گزر چکا ہے، تو کیا تم میں سے کسی نے اپنے نفس کو کچل کر تابع فرما بنایا؟ جواب دیں، کیا تم نے ان باتوں پر عمل کیا جو تمہیں پہنچی؟ ہم نے کتنی ساری باتیں سیکھی نا، کتنا عمل کرنے کی طرف ہمارے قدم بڑھے۔ کیا تمہیں اعلیٰ منزلوں کو پانے کا شوق پیدا ہوا؟ کیونکہ یہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں، ان ایام میں نیکیاں کرنے والے اپنا کام جاری رکھو، اور ان ایام میں برائیاں کرنے والے اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ اگر اس مہینے میں بھی خسارہ ہی اٹھانا ہے تو نفع کب کماؤ گے؟ اب بھی اگر نقصانات کو خیر بات کہہ کے فائدوں کی طرف رخت سفر نہیں باندھو گے تو کب باندھو گے؟ بہت زبردست بات ہے کہ اب بھی نہیں کرنا تو کب کرنا ہے پھر؟ دیکھیں، ہم سب کے ساتھ یہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس وقت، شاید میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹین ایجر بیٹھا ہوگا، اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن زیادہ میجورٹی ہم میں سے ان لوگوں کی ہے جو اس وقت ٹین ایج سے گزر چکے ہیں، 20s میں سے بھی گزر چکے ہیں، اب ڈاؤن دا ہل ہے، یعنی اب آنکھوں پر چشمے لگنے شروع ہو گئے ہیں، بالوں میں سفیدی آنے شروع ہو گئی ہے، چاہے ہم اس کا انکار ہی کریں، چہرے پہ جتنا مرضی بھی چاہیں جھریاں آنے شروع ہو گئی۔ اس سب کس چیز کے سائنس ہے؟ کہ رخت سفر باندھو، یہ نہیں کہ اور پھیلاؤ۔ غنیمت جانو وہ موقع جو تمہیں مل رہا ہے، کیونکہ اب چل چلاؤ کے سائنس شروع ہو گئے ہیں، لہذا اب جیسے ہمتیں کم ہو رہی ہیں، کبھی گھٹنے دکھ رہے ہیں، کبھی کمر دکھ رہی ہے، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو ایسی حالت کے اندر انسان کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب مجھے اپنی اور جوانی نہیں ملنی، میں نے ابھی جوانی نہیں جینی، اب مجھے آگے کی طرف سوچنا ہے کہ میرا نیکسٹ قدم کدھر ہوگا، مجھے اپنی ایفرٹس کو تیز کرنا ہے، سست نہیں ہونا کہ اب تو ہمت نہیں، اب کیا نہیں جاتا، نہیں، آگے کو ہمت کم نہیں ہوگی، کل کو زیادہ نہیں ہوگی، اگلا رمضان آئے گا اس سے کم ہوگی، اس سے اگلا آئے گا اس سے کم ہوگی۔ تو غنیمت جانے جو وقت گزر رہا ہے، اس کے اندر ہی کوشش کیجئے کہ آپ اس کو بیسٹ گزاریں، بیسٹ، یہی سوچ کے کہ میری پتہ نہیں اگلے رمضان تک میری ہمت کتنی ہو۔ تو ابن جوزی فرماتے کہ اس مہینے میں بھی تم نے نقصان ہی اٹھانا تو فائدہ کب کماؤ گے؟ یہ تو فائدہ کمانے کا مہینہ ہے۔ تو اب تو اس وقت جو سیل لگی ہوئی ہے وہ دوبارہ تو نہیں ملے گی۔ اس وقت نیکیاں کرنا جتنا آسان ہوا ہے، جتنی سستی ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، جتنی مرضی نیکیاں پک کر سکتے ہیں، اس میں بھی اگر غفلت کی، سستی کی، تو پھر اللہ اکبر، پتہ نہیں کب ہے جب ہم چست ہوں گے۔ تو اب دیکھ لیں، اس مہینے کے بھی آخر کا ٹائم آ گیا، 2-3 دن مشکل سے رہ گئے، ابھی بھی کیا ہم نے عمل میں تیزی دکھائی یا نہیں؟ لہذا اپنے آپ میں جب سستی آنے لگے تو اس وقت ہی خود کو کہا کریں کہ اب چند دن رہ گئے، تو اس لیے میں اب زیادہ
शौक के साथ, ज्यादा हिम्मत के साथ इबादत करूं। अल्लाह ताला इसकी तौफीक हमें अता फरमाए। चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। فاعف عني عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. देखते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड, जन्नत और जहन्नम के पुरफरेब रास्ते। मैं इस रास्ते की रंगीनियों से मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। यहाँ तो वाकई ऐसी ऐसी चीजें हैं कि कोई इंसान भी इनमें खो सकता है और सब कुछ भुला सकता है। वो नजारे हैं, वो अट्रैक्शंस हैं जो अपने अंदर गुम कर लेने वाली हैं, जिनमें कोई पड़ जाए तो उसको अपनी आखिरत, अपना जिंदगी का मकसद, अपना रब ही भूल जाता है। एक मंजर ने मुझे चौंका दिया। एक जवान शख्स, कोई 25-30 के फेरे में होगा, जमात से नमाज पढ़ रहा है और फिर कुरान की तिलावत कर रहा है। मस्जिद में रौनक है, लोग आहिस्ता आहिस्ता करके जा रहे हैं, मगर वो बैठा अपनी खूबसूरत आवाज में कुरान करीम पढ़े जा रहा है। लोग उसके पास से गुजरते हैं, सलाम दुआ करते हैं और चले जाते हैं। फिर वो मस्जिद की कुर्सियां दुरुस्त करने लगता है और इसके बाद बड़े इत्मीनान से बाहर आता है। वहां और लोग भी खड़े हैं, उनके साथ मिलता है। अरे शहजाद, तुम्हारी तिलावत सुनी थी कल रात, बहुत जबरदस्त, कमाल कर दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू। बोलो अब कब मुलाकात होगी? एक दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बस तुम्हें पता है मैं तो मस्जिद में ही रहता हूं, जब भी फुर्सत मिलती इधर ही आ जाता हूं। इसके अलावा तो मेरा कोई और मशगला नहीं। कुछ क्लासेस ले रहा हूं, बस उसकी मसरूफियत है। किस चीज की क्लासेस? यही हिफ्स वगैरह की, नाजरे की। एक बहुत बड़े शेख हैं जिनसे मैं पढ़ रहा हूं आजकल। वाह भाई, क्या बात है तुम्हारी। अरे कितनी नेकियां करोगे, तुमने तो हम सबको ही पीछे छोड़ दिया। इस एज में इतना करना बहुत बड़ी बात है। मेरी तो अम्मी तुम्हारी मिसालें ही देती रहती हैं कि देखो शहजाद को, देखो वो कितना नेक बच्चा है, वो इमामत कराता है, हिफ्ज कर रहा है। बस अम्मी तो उठते बैठते तुम्हारे गुण गाती हैं कि बेटा हो तो शहजाद जैसा। वो हंस दिया। उसने अपने सर से टोपी सीधी की, अपने जुब्बे की आस्तीनें ऊपर रोल की और बोला, अच्छा फिर मैं चलता हूं, बहुत काम है मुझे। दूसरों से सलाम दुआ करके वो गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। ये नौजवान यहां कैसे? मैं सोच में पड़ गई। ये रास्ता तो जहन्नुम की तरफ जाने वाला, फिर यहां इसका क्या काम? 5-10 मिनट में वो अपने घर पहुंच गया। उसने घर का दरवाजा खोला, सलाम किया और सीधा किचन में चला गया।
उसकी बहन फोन पर किसी से बात कर रही थी। जी जी आंटी, आजकल लोगों का हाल देखें, ना नमाज का होश ना रोजे का, ज़कात का तो पता ही नहीं है। और हमने तो बहन भाइयों ने आज तक कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी। और आजकल ये लड़कियों को देखें, हिजाब का कोई पता नहीं। ये कौन से हिजाब हैं जो ये लेती हैं? फेसबुक पे देखें कैसे अपनी तस्वीरें लगाती हैं। देखा होगा आपने सीमी को, वो जो हिजाब लिया करती थी, अब उसने सब छोड़ दिया। आगे से आंटी ने भी कुछ और बोला, फिर ये बड़े कन्विंसिंग अंदाज में, बड़े तकब्बुर के साथ कहने लगी, जी मेरा तो कभी एक बाल नजर नहीं आया, पता नहीं लड़कियों का अंजाम क्या होगा। फिर बड़ी नखुवत से उसने कहा, ऐसे लोगों की बख्शिश का क्या पता। इस लम्हे में उसकी आवाज में एक बड़ाई का एहसास था और दूसरों के लिए हकारत थी। शहजाद पानी की बोतल भर रहा था और साथ साथ उसकी बातें भी सुन रहा था। लड़की ने स्पीकर ऑन करके भाई के लिए खाना गर्म करना शुरू कर दिया। फोन पर मौजूद आंटी बोली, बेटा तुम तो सारा दिन मसरूफ रहती हो। हाँ आंटी, मैंने कुछ क्लासें भी ज्वाइन की हुई हैं, हिफ्स भी कर रही हूं। सोशल वर्क में भी मेरा बहुत वक्त लग जाता है। सारा दिन में बस कभी एक पैर घर में और एक बाहर। आजकल तो मैं एक ऑर्फनेज में काम कर रही हूं, मैं फ्री वहां वॉलंटियर करती हूं। आंटी तो इसकी बातों से मरऊब हुए जा रही थी। अच्छा तुम किस वक्त फारिग होती हो बेटा? बस आंटी कोई वक्त मेरा तो फारिग है ही नहीं। बच्चों को शाम को फ्री क्लासेस भी देती हूँ नाजरे की। आंटी बोली, अच्छा। उनके अच्छा से ही मैं समझ गई कि अब वो पूरी तरह इससे इंप्रेस हो चुकी हैं, कायल हो चुकी हैं इसकी नेकी की। अल्लाह ऐसी नेक बच्चियां सबको दे। जी आमीन आंटी। सब आजकल की लड़कियों को तो ये बात समझ नहीं आती। अब देखिए ना, सारा दिन फेसबुक पे बैठी हुई है, सारा दिन उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं। गुड्डी को देखें, वो क्या करती रहती है। हिजाब के उसके हाल देखें, आधे बाल नजर आ रहे होते हैं। मैं कितनी देर से उसकी गुफ्तगू सुन रही थी। उसकी हर बात में दूसरों की हकारत और अपनी नेकी का जोम था। मैं ये करती हूं, मैं वो करती हूं, मैं वो करती हूं, और लोगों को देखें वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते। एक ही मैसेज। वो दुनिया के दूसरे लोगों की बदअमली की वजह से गमगीन नहीं थी, रंजीदा नहीं थी, उसके दिल में दुख नहीं था। इसकी बजाय हकारत थी और अपनी बड़ाई का एहसास था। दूसरों को नीचा करके यूं लगता था वो खुद को बड़ा समझ रही है। वो बार बार अपनी नेकियों का प्रचार किए जा रही थी। वो हर नेकी वो चाहती थी कि किसी तरह मैं दूसरे तक पहुंचा दूं, और यूं लगता था कि उसकी पाई की नेकी का कोई और मुकाबला कर ही नहीं सकता। जिस लेवल की वो नेकियां कर रही है वैसा तो कोई भी नहीं। और जमाने भर में इतनी खराबियां हैं, इतनी गलतियां हैं, मगर उसमें कोई गलती नहीं। उसका हर काम परफेक्ट है। और यूं लगता था उसकी नेकी की लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। मैं खुद उसको देखकर हैरान हो रही थी। इतनी नेकियां, इतने अच्छे अमल। शहजादा अपनी प्लेट लेकर मेज पर बैठा हुआ खाना खाने लगा और साथ साथ अपना फोन चेक करने लगा। मैं आज बड़ी उलझन में थी। ये क्या हो रहा है? इस घराने में तो सभी जन्नत के रास्ते पर चलने वाले हैं, फिर ये यहां इस रास्ते पे क्या कर रहे हैं?
ये कैसे हो सकता है? लड़की अभी तक फोन से फारिग नहीं हुई थी, उसकी जुबान तेजी से चल रही थी। अरे आंटी, मैं तो कहती हूं इनकी माफी कैसे हो सकती है? इनको तो अल्लाह ताला ने कभी माफ नहीं करना। हरकतें देखें इनकी क्या है। उसकी ये बात करने की देर थी, मैंने देखा दूर जहन्नुम की आग में इस कदर जोरदार चिंगाड़ सुनाई दी है कि मेरा दिल दहल गया। मैं समझ गई इसने वो बात की है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। इसने अपना ठिकाना जहन्नुम में बना लिया। मुझे वो हदीस याद आई कि इंसान अपने मुंह से कोई एक बात ऐसी निकाल देता है जो अल्लाह ताला को इतनी नापसंद आती है कि वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना लेता है। वो बेध्यानी में बोलती चली जा रही थी और उसको ये एहसास नहीं था कि उसकी जुबान से क्या निकल रहा है। जब इतनी ज्यादा बातचीत होगी तो फिसलने का इम्कान भी तो ज्यादा हो जाता है, मगर उसको इसकी परवाह नहीं थी। और जब उसने ये बात की तो मुझे वो हदीस याद आ गई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेक आदमी का बताया था कि वो अपने भाई से कहता है कि मत गुनाह कर। तो भाई कहता तू मुझे छोड़ दे मेरे हाल पे। फिर वो उसको समझाता है, फिर वो नहीं बाज आता, फिर समझाता है, फिर नहीं बाज आता। तब वो उसको कहता है अपने भाई से, सुन, तुझे अल्लाह कभी नहीं बख्शेगा। अल्लाह ताला ने दोनों भाइयों की जान कब्ज करने का हुक्म दे दिया और जो भाई नेक था उससे फरमाया, तू कौन होता है कि मेरे बारे में फैसला करने वाला बन जाए कि मैं किसको बख्शूंगा किसको नहीं? मैंने उसको बख्श दिया और तेरे लिए जहन्नुम है। मुझे जहन्नुम की आग के शोले ऊपर जाते हुए दूर से दिखाई दे रहे थे। स्याह रात की जहन्नुम गुस्से में भड़क रही थी और पास बैठे फरिश्ते अपनी किताब में इस लड़की के लिए शिर्क लिख रहे थे। मगर इसने कहां किया शिर्क? अरे मैं तो भूल ही गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिखावे की नमाज शिर्क है, दिखावे का रोजा शिर्क है, तो दिखावे का हर अमल तो शिर्क है और इसका हर अमल रियाकारी से भरा हुआ था। इंसान लोगों की वाह वाह चाहने में कितना आगे निकल जाता है, उनकी सताइश का, उनकी तारीफ का मुंतजिर अपने आप को नेक दिखाने में अपने अमल को बर्बाद कर देता है। वो यहां तो वाह वाह ले लेता है, लेकिन वो जानता नहीं अल्लाह की तरफ से जहन्नुम का फैसला उसके लिए लिख दिया गया। इस लड़की ने कितना घाटे का सौदा किया, इतनी भागदौड़ कर रही है, इतना थक रही है, मगर इतना कुछ कमा के भी आग खरीद रही है। और सबसे ज्यादा मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि इसको पता ही नहीं कि इसके साथ हो क्या रहा है। ये समझ रही है इसका नाम आमाल नेकियों से भरा जा रहा है और ये मुतमईन है और ये खुश है कि इसने अपनी आखिरत के लिए बहुत कुछ जमा कर रखा है और इसको कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। मगर ये क्या जाने कि जो ही आंख बंद होगी तब पता चलेगा कि सब सफाया हो चुका। तब पता चलेगा कि सब मिट चुका और बल्कि उसकी जगह शिर्क लिखा जा चुका, शिर्क खफी। इसको तो पता भी है, इसके पास तो इल्म भी है कि रियाकारी शिर्क है, फिर भी ये यही काम कर रही है। इसको तो पता भी है इससे नेकियां जाया हो जाती हैं, फिर भी ये हर बात में कोशिश कर रही है कि किसी तरह बता दूं कि मैं कितनी नेकियां करती हूं। शहजाद फोन पर कुछ पढ़ते हुए उठ खड़ा हुआ और सीधा अपने कमरे में जाकर कमरे को लॉक कर लिया। वो अपने डेस्क पर बैठा था
और कंप्यूटर पे कुछ सर्च करने लगा। अचानक मेरी तो चीख निकल गई। कुछ ऐसी तस्वीरें स्क्रीन पर आईं जिनको कोई बाहया इंसान देख भी नहीं सकता था। उसने फोन लिया, एक नंबर डायल किया। आगे से किसी लड़की ने फोन उठाया। जबरदस्त तस्वीरें भेजी हैं तुमने। हाँ, अभी अभी खोली हैं। अच्छा ये बताओ तुम मिलोगी कब? सामने से हंसने की आवाजें आ रही थी और कोई खातून नाजो अंदाज से बातें कर रही थी। सुनो, मुझे कोई बहाना करके ही निकलना पड़ेगा, इसलिए कि यहां सब लोग मुझे पहचानते हैं और मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लिहाजा शहर के बाहर किसी होटल में मिलते हैं। पहले एक और डेटिंग साइट से एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी। उसने तो मुझे मरवा ही दिया था। एक दफा उसने फोन कर दिया और मैं उस वक्त मस्जिद में था। तो मुझे कभी फोन ना करना, मैं खुद किया करूंगा। वो पता नहीं क्या क्या प्लान बना रहा था और मेरा सर घूम रहा था। यूं लगता था मेरी अक्ल माऊफ हो गई है। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही नहीं जो अभी अभी मस्जिद में था, जो अभी तिलावत कर रहा था, जो अभी लोगों को बता रहा था कि मैं कितना पढ़ता हूं, मैं मस्जिद में रहता हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैं क्यों इतनी बेयकीनी की हालत में हूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले बता दिया था कि मैं अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जानता हूं जो क़यामत के दिन तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। अल्लाह ताला उनको फिजा में उड़ते हुए जर्रे की तरह बना देगा, डस्ट। तो सहाबा ने उस वक्त पूछा था, अल्लाह के रसूल, उन लोगों का हाल हमें भी बयान फरमा दे, कहीं हम लाइल्मी और जहालत की वजह से उनमें शामिल ना हो जाएं। पहाड़ बराबर नेकियां कैसे बन जाएंगी? जर्रों के बराबर, जैसे कुछ भी नहीं है, उड़ा दी जाएंगी, डस्ट है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जान लो कि वो तुम्हारे भाइयों में से ही हैं, तुम्हारी कौम में से हैं, यानी मुसलमान हैं। वो भी रातों को इसी तरह इबादत करेंगे जैसे तुम इबादत करते हो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको बता रहे थे? सहाबा को, कि वो रातों को इबादत करते होंगे, इतनी बड़ी नेकियां लेकर आएंगे पहाड़ों के बराबर। एकदम मेरे जहन में यही नौजवान आया, मस्जिद में बाहर जमात नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, लोगों से खुश अखलाकी से मिल रहा है। लेकिन अगली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, लेकिन ऐसे लोग जब तन्हाई में होंगे, अकेले में होंगे, तो हराम काम करेंगे। वो लड़की उससे हंस हंस के बातें किए जा रही थी और उसने ऐसी साइट्स अपने सामने खोली हुई थी जिन पर नजर डालना भी किसी मुसलमान को जेब नहीं देता। उसने कितना घाटे का सौदा किया, जाहिर कुछ और बातिन कुछ, अंदर कुछ और बाहर कुछ, लोगों में कुछ और तन्हाई में कुछ। तन्हाई में तो ऐसा कि शैतान भी शर्मा जाए। क्या इसको मालूम नहीं कि अल्लाह की नजर तो तन्हाइयों पर भी है? वो सिर्फ मजमू में तो नहीं देखता लोगों को। और इंसान तो कभी तन्हा होता ही नहीं। उसके फरिश्ते करीब बैठे उसकी एक एक बात को नोट कर रहे थे। वो बेपरवाह होकर बातें कर रहा था। हाँ, वो बेफिक्र था इसलिए कि कमरा लॉक था, लेकिन वो ये भूल गया था कि फरिश्ते इस लॉक को नहीं पहचानते। वो तो मेरे साथ बैठे हैं। अगर इसके दोस्तों को, इसकी कम्युनिटी को पता चल जाए कि ये बंद कमरों में क्या करता है, तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। इसकी यही किताब जो इस वक्त फरिश्ते लिख रहे हैं, जिसमें इसका एक एक डायलॉग, एक एक आंख की हरकत को नोट किया जा रहा है, एक एक
सीन जो ये देख रहा है सब नोट हो रहा है। एक दिन यही किताब इसको खुद पढ़नी पड़ेगी जब अल्लाह ताला फरमाएगा इक़रा किताबक, तो इसको खुद फेस करना पड़ेगा हर वो अमल जो इसने किया। तब कहां छुपने की जगह पाएगा? आज तो छुपा हुआ लोगों से, उस दिन कहां छुपेगा जिस दिन सुहुफ नुशिरत, सहीफे जब नशर कर दिए जाएंगे, सब खबरें नशर हो जाएंगी, ब्रॉडकास्ट। तब क्या होगा? कहां भागेगा? ये बातें तो उसको जलील और रुस्वा कर देंगे। इसने क्या सोचा नहीं कि यही सब कुछ एक दिन सारी दुनिया के सामने खुल जाएगा। ये कैसे इतना बेखौफ हो गया? अभी तो ये सूरतुर रहमान पढ़ रहा था मस्जिद में, मगर कुरान सिर्फ हलक तक ही रह गया और इसके अंदर नहीं उतरा। काश लोग इस बात को समझ जाएं कि उनकी तन्हाइयां भी लिखी जा रही हैं, जैसे उनके मजमू की बातें लिखी जा रही हैं, और उनकी तन्हाइयों पर अल्लाह की नजर रहती है। क्या वो ऐसी बातें, ऐसी बेहयाइयां देखने सुनने से पहले, किसी की गीबत चुगली करने से पहले, छुप छुप के कमरों में बेहया हरकतें करने से पहले, किसी के खिलाफ प्लानिंग करने से पहले सोचते नहीं कि हर दो का तीसरा अल्लाह है? क्या लोगों को ये शर्म नहीं आती कि उनका रब उन पर नजर टिकाए हुए है? वो लोगों से दरवाजों को लॉक करते हैं, अल्लाह ताला से तो लॉक नहीं कर सकते, जो बंद दरवाजों के पीछे भी देख लेता। और वो हर गुफ्तगू को सुनने वाला है, हर नजरों की खयानत को जानता है जो स्क्रीन के सामने बैठ के इंसान करता है। मुझे दुख तो इस बात का था कि सब करके भी ये नौजवान हार गया, सब पा के भी इसने खो दिया, जीत कर भी ये हार गया। मगर अभी ये जिंदा था, मैंने उसके लिए दुआ की, ये अल्लाह इसको तौबा की तौफीक दे दे। काश ये तौबा कर ले और पलट आए इस रास्ते से, तो अभी भी इसके पास इम्कान है, अभी भी चांस है, अभी इसकी किताब बंद नहीं हुई। ये यहां से पलट के वो दूर दूसरी तरफ जन्नत के रास्ते की तरफ जा सकता है, अभी वक्त है। मगर जरूरत तो इस बात की है कि उसको ये बात रियलाइज हो जाए कि वो क्या कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि वो सोच ले इस बात को कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि वो पिछताए अपने इस अमल पे, उसको एहसास हो जाए। मैं उसके लिए बहुत दुआएं कर रही थी और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो आग से बच जाए। यहां तक आज का एपिसोड है। अल्लाह ताला इस सीरीज से भी हमें कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेशन है ये क़याम का है, जिसमें हम इंशाअल्लाह ताला जहां से भी कुरान पाक इस वक्त पढ़ रहे हैं वहां से हम आगे कंटिन्यू करें। मैंने आपको कल बताया था, इमाम औज़ाई ने फरमाया कि जो लंबा क़याम करता है ना दुनिया में, उसके लिए अल्लाह ताला के सामने पेशी आसान हो जाएगी। कैसे कि देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के सामने भी तो ऐसे ही खड़े होना ना, क़याम की हालत में हाथ बांधे हुए। तो यहाँ पे लंबे क़याम करें और साथ दुआएं भी करें कि अल्लाह तू वहां की पेशी को आसान कर देना।
اور جب آپ سجدے میں جائیں نا تو سجدے میں دعائیں کیجئے، سجدے کو لمبا کیجئے، سجدے میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں. آپ جب سجدے میں سر رکھیں نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذرا ناموں پر غور کریں، اور وہاں پہ کیونکہ سجدے میں فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. آپ قیام میں اتنے قریب نہیں، رکوع میں اتنے قریب نہیں، آپ بیٹھے ہوئے تسبیح کریں اتنے قریب نہیں. سجدے میں آپ سمجھیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکاریے، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا غفور، یا اللہ یا مجیب، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا غفور، یا اللہ یا عفو. تو اس کے ناموں کو ذرا نا ریپیٹ کریں، ریپیٹیشن، وہیں پہ رہیں سجدے کی حالت میں اور ریپیٹ کرتے جائیں. آپ کے دل پر ایک عجیب ہی کیفیت آ جائے گی، بہت لذت کی. تو ایسے کر کے دیکھیں، انجوائے کریں اپنی عبادت کو، بوجھ کے ساتھ نہ کریں کتنی رہ گئی رات، کیا ٹائم ہو گیا، کتنا اور وقت رہ گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے کیا ہے سحری کا وقت بھی ہو گیا، رات اتنی جلدی گزر گئی. کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے نا اس کے ساتھ انسان بات کرتا ہے نا تو وقت کا پتہ نہیں چلتا. وہ ٹائم دیکھتا ہے تو ٹائم ایسا لگتا ہے جیسے اڑ رہا ہے، ٹائم کو پر لگ گئے اتنی تیزی سے. اس کا دل چاہتا ہے کہ ٹائم کو روک لے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب بن گیا نا، ہم محب بن گئے، لور، جس دن ہم لور بن گئے نا اس کے کہ ہم اسے محبت کرنے والے، تو اس دن آپ دیکھیں گے اس دن یہ مشکل نہیں رہیں گی عبادتیں بھی، اور مشکل نہیں رہیں گے یہ سجدے بھی، اور پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو راتوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.